Good morning students. Today we'll start parametric equations. When both the variable x and y are in the third variable, let it be t. X is a function of t and y is a function of t. Then dy by dx is equal to, first of all, we take the derivative of the both function with respect to t, then divide them. Dy by dx is equal to g dash t by f dash t, which is equal to derivative of g with respect to t divided by derivative of f with respect to t. Start with the exercise 6c. Question number 3rd. If x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square, y is equal to 2t upon 1 plus t square, then prove that dy by dx plus x by y is equal to 0. Here both the variables x and y in the third variable t, दोनों ही वेरिएबल तीसरे वेरिएबल t की फॉर्म में हैं. तो पहले हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, देन बोथ डेरिवेटिव्स को डिवाइड करेंगे. पहले dx by dt निकालेंगे. Here it is the function in the form of u upon v. u upon v रूल लगाओगे, v square v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v. Here u is the numerator and v is denominator. फिर आपने यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t विद रिस्पेक्ट टू t लिया ना, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टी स्क्वायर का 2t. तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट ओपन की, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया. 2t क्यूब और 2t क्यूब प्लस माइनस के थे वो कैंसिल हो गए, माइनस 2t माइनस 4t डिनोमिनेटर एज इट इज. नाउ नेक्स्ट इसमें भी सेम रूल लगेगा, u अपॉन v dy by dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2t का डेरिवेटिव 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, तो 2 आ गया, माइनस 2t एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू t 2t आ जाएगा, 2t इंटू 2t इज 4t स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई किया, 2 कॉमन लेके 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ dx by dt we get minus 4t by 1 plus t square का होल स्क्वायर, और dy by dt आपका आया था 2 into 1 minus t square by 1 plus t square का होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx. तो पहले आप dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, ये दोनों को डिवाइड करोगे. डिवाइड किया, यहाँ पर हमें प्रूव करना है dy by dx प्लस x by y इज इक्वल टू 0 ना. तो x आपका है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और y 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो आपने यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर की एक पावर दोनों में कैंसिल हो रही है ना, वैसे तो पूरा कैंसिल हो रहा है, मैंने कैंसिल पूरा इसलिए नहीं किया कि ये आपका फैक्टर जो है ये पूरा का पूरा आपका x बन रहा है और ये y बन रहा है, इसलिए नहीं कैंसिल किया. और यहाँ पर 2 के टेबल से 4 को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 2 के टेबल से 4 को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू x अपॉन माइनस 5. और ये नेगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव हो गई, जो हमें प्रूव करना था, दैट इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. If x is equal to 3at upon 1 plus t square, y is equal to 3at square upon 1 plus t square, find dy by dx at t is equal to 0. First we will find the derivative of x with respect to t. Here the function is in the form of u upon v. तो u upon v rule लगाओगे, derivative of u upon v is v square, v as it is derivative of u. 3at का डेरिवेटिव, 3a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, तो 3a इंटू 1 that is equal to 3a minus 3at as it is derivative of 1 plus t square with respect to t is 2t, which is equal to
3a plus 3a t square minus 3 to the 6a t square divided by 1 plus t square whole square. सबट्रैक्ट करके आपके पास आ गया 3a minus 3a t square divided by 1 plus t square whole square. Now next differentiate by with respect to t. With respect to t, denominator का square, denominator as it is, derivative of numerator is 6at, 3a is constant, t square का derivative 2t minus 3at square as it is, derivative of denominator is 2t, which is equal to 6at plus 6at cube minus 6at cube divided by 1 plus t square whole square. These terms cancel. 6at divided by 1 plus t square whole square. Now we have to find dy by dx, which is equal to dy by dt divided by dx by dt. dy by dt की वैल्यू आपके पास क्या थी? 6at divided by 1 plus t square का होल स्क्वायर, और dx by dt की वैल्यू क्या है? 3a minus 3a t square divided by 1 plus t square का होल स्क्वायर. ये डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, कैंसिल आउट हो गई. आपके पास 6at divided by 3a कॉमन, 1 माइनस t स्क्वायर ये बचा, a से a कैंसिल, 3 2 जा 6, 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर आपके पास बचा. अब आपको फाइंड करना है dy by dx एट t इज इक्वल टू 0. तो पुट t इज इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी 2, t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2 पुट करो. dy by dx इज इक्वल टू, t को 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 स्क्वायर, which is equal to 2 to the 4, 1 minus 4, that is minus 4 by 3. This is your answer. Question number 8. Differentiate 7x raised to power 5 minus 11x square with respect to 7x square minus 15x. आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू it. तो let it be y is equal to 7x raised to power 5 minus 11x square. इसको x नहीं लेट करोगे बिकॉज x is already used, तो इसको z लेट कर लो, let it be z. तो आपको फाइंड करना है dy by dz. इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस करना है ना, तो dz डिनोमिनेटर में आएगा, ये आपको फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड dy by dx. दोनों ही x वेरिएबल में है, पहले x की विद रिस्पेक्ट टू दोनों को डिफरेंशिएट कर दोगे. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 7 एज इट इज x रेज़्ड टू पावर 5 का 5x रेज़्ड टू पावर 4, 11 एज इट इज 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. नाउ dz by dx इज इक्वल टू 7 एज इट इज x स्क्वायर का 2x माइनस 15 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1. dy by dx इज इक्वल टू 7 5 जा 35, x4 माइनस 22x, और dz by dx is equal to 14x minus 15. Now you have to find dy by dz, which is equal to dy by dx divided by dz by dx. 35x is to the 4 minus 22x divided by 14x minus 15. This is your answer. Now derivative of implicit function. The joint equation in the form of x and y is called implicit function. Differentiate कैसे करना है implicit function को, वो हम एक्सरसाइज से करेंगे. एक्सरसाइज 60 ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट. Now this is the equation in x and y both. तो इस तरह की इक्वेशन को implicit functions बोलते हैं. Now differentiate both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. You have to find dy by dx here. तो यहाँ पर x and y दो फंक्शंस हो गए आपके, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा.
तो x इंटू वाई का जब डेरिवेटिव आप लोगे उसमें आप प्रोडक्ट रूल यूज करोगे। नाउ डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर u इंटू वी रूल लगाओगे, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx होगा, प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे, दैट इज 2y, बट हमें तो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो y का डेरिवेटिव आप लोगे बाय चेन रूल with respect to x dy by dx is equal to tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant square x plus y का डेरिवेटिव with respect to x is dy by dx। जिस टर्म में dy by dx आ रहा है उस टर्म को एक तरफ कर लेंगे, dy by dx कॉमन ले लेंगे, ये वाली टर्म इस तरफ आके नेगेटिव होगी, उसमें से dy by dx कॉमन ले लिया और secant square x, ये y वहां पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ dy by dx is equal to secant square x minus y divided by x plus 2y minus 1. This is our answer. Now question number 4. Find dy by dx when x into y plus x e raised to power minus y plus y e raised to power x is equal to x square. Now differentiating both sides with respect to x. Here x into y product rule लगेगा यहाँ पर again x into dy by dx plus y into derivative of x is 1. यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा x into e raised to power minus y में x का डेरिवेटिव 1 e raised to power minus y as it is plus x as it is e raised to power minus y का डेरिवेटिव e raised to power minus y as it is e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x होता है ना, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया u इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ले लिया और चेन रूल से इसका डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, दैट इज माइनस dy by dx, माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा y एज इट इज e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x प्लस e raised to power x एज इट इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx is equal to x square का डेरिवेटिव 2x। हियर जहां जहां पर dy by dx आ रहा है वो वाली टर्म में से dy by dx कॉमन ले लेंगे, x यहाँ पर माइनस x इंटू e raised to power माइनस y, यहाँ पर माइनस e raised to power x इंटू dy by dx, उस तरफ 2x माइनस y माइनस e raised to power माइनस y माइनस y e raised to power x, ये वाली टर्म्स आ जाएंगी और dy by dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x माइनस y माइनस e raised to power माइनस y माइनस y e raised to power x divided by x minus x e raised to power minus y minus e raised to power x. This is your answer. Now question number 6. Y is given to you, y is equal to square root of x plus again square root of x plus again square root of x plus up to infinity. Means यही वाली repetition होती जाएगी infinite. अब y is equal to, अगर आप ध्यान से देखो इसके जो अंदर वाली टर्म है ये इंफिनिटी तक जा रही है ऐसे, ये रूट के बाद x प्लस जो अंदर जा रही है ये अगेन y जैसा ही है, तो इसको हम y लिख लेंगे। इनफाइनाइट टर्म्स है ना, तो इसको एक बार और लिख लेंगे तब फिर अगेन y जैसा ही दिखेगा ना, तो इसको y लिख लेंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, y square is equal to x plus y. Now differentiating with respect to x, दोनों तरफ with respect to x डिफरेंशिएट करोगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव with respect to x 2y, चेन रूल से dy by dx is equal to x का with respect to x 1 होता है, y का dy by dx। Now dy by dx वाली टर्म एक तरफ कर लोगे, कॉमन ले लो dy by dx, दिस इज
we have to prove. Hence proved. Pause. Now question number 10. If y into square root of x square plus 1 is equal to log of x plus square root of x square plus 1, then we have to show x square plus 1 into dy by dx plus xy minus 1 is equal to 0. Now differentiating this equation with respect to x both sides. Differentiating both sides with respect to x. यहाँ पर y इंटू फंक्शन ऑफ x है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे y एज इट इज डिफरेंशिएटिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी. 1/2 पावर आगे आई तो उसकी पावर -½ रह जाएगी. रूल लगाओगे ना एक्स रेज़ टू पावर n वाला n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n -1 तो इसमें दोबारा से चेन रूल लगेगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे दैट इज 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर log का डेरिवेटिव क्या होता है log x का 1/x. तो इसको मैंने एक तरह से एज्यूम किया है, जिसको मैंने u एज्यूम किया है. अगेन उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, इसी को चेन रूल बोलते हैं. इस पे चेन रूल लगाया. x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगेन इसी फॉर्म में लगा दो. सेम यही है ना इसका डेरिवेटिव. सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना था ना. y into derivative of this plus this as it is derivative of y, that is dy by dx, which is equal to, यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह पे ये पूरी टर्म है ना, इसको मैंने u एज्यूम किया तो विद रिस्पेक्ट टू u ले लिया पहले 1/u. अब चेन रूल से u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे विच इज 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x. सेम इसी तरह से जिस तरह से ये लिया था. 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहाँ पर आपके पास आएगा xy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. हेयर एलसीएम लेने पर आपके पास आएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये आया आपके पास. ये कैंसिल हो रही है टर्म. अब विच इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसका एलसीएम लेके 1 माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. Now cross multiplying we get x square plus 1 into dy by dx और ये वाली जो टर्म है इधर आके एक्स वाई पॉजिटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव इक्वल टू 0. Hence proved. Thanks.